हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेटेस्ट जॉब ओपनिंग्स। कैसे हैं आप सब लोग? फ्रेंड्स, इस वीक से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है वीकली एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ सीरीज, जिसमें हर वीक एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के ग्लिम्सेस हम आपके साथ शेयर करेंगे, वो भी सबसे पहले। जी हाँ, एंड इन एडिशन टू द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ सीरीज़ हम और भी बहुत सारी जॉब वैकेंसीज आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे कि हमने पहले SBI PO 2020, ICMR असिस्टेंट 2020 एंड CHSL की भी जॉब पोस्ट की हैं। अगर आपने वो जॉब्स नहीं देखी हैं तो प्लीज़ गो टू अवर चैनल एंड ज़रूर देखिएगा। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑफिशियल नोटिफिकेशन. And since we post our videos from the authentic sources and the official notification, so don't forget to subscribe to our channel and press the bell icon for the regular updates so that you can grab maximum opportunities. So let's start with this week employment news discussion from which is from 14 to 20th November, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल which is opportunities for skilled workforce. अब इसमें हम आगे चलते हैं तो हमें मिलेगा सबसे पहले पेज नंबर 3, जिसमें यूपीएससी की बहुत सारी पोस्ट हैं, जिसमें सबसे पहले जस्ट अ सेकेंड, यस, सबसे पहले हमें मिलती हैं 17 वैकेंसीज फॉर पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट ग्रेड 3, जिसमें एज लिमिट है 40 ईयर्स एंड पे स्केल इज लेवल 11। जिसमें फर्दर आते हैं हम फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर स्लैश सीनियर ट्यूटर. Again, pay level 10, age limit is 40 years. Next is the post for medical officer, pay level 10 and age limit 35 years. Next is the post for the staff nurse, age limit is 30 years, pay level 7. Further is 13 vacancies for the post of assistant director, pay level 7, age limit is 30 years. For more details, you can refer to www.upsconline.nic.in and you can refer to this week employment newspaper as well. Further, there are also 2 more vacancies for the post of accounts officer, which is on deputation basis from UPSC. Further, अब आते हैं हम प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की वैकेंसी पे, विच इज़ फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड D, जो कि है फॉर 12th स्टैंडर्ड. इसकी एक डिटेल वीडियो मैं सेपरेट भी बना सकती हूँ इफ़ यू वांट, बट दिस इज़ ओनली फॉर वन पोस्ट एंड द ग्रेड पे इज़ 2400. मैक्सिमम एज लिमिट इज़ 27 ईयर्स. नेक्स्ट इज डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू पोस्ट फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, विच इज़ ऑन डेपुटेशन बेसिस. नेक्स्ट आते हैं REC पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की पोजीशंस पर, जिसमें 2 पोस्ट हैं फॉर द कैटेगरी ऑफ OBC MCL. One is Deputy Executive Technical Project and another is Deputy Executive Technical Design Engineering and Contracts. ये fixed term basis पर है, initially for the period of 3 years, which is further extendable for the period of 1.5 years. For the post of Deputy Executive Technical, qualification is Bachelor of Engineering, 6 years minimum post qualification experience, consolidated pay is 85,000, age limit 40 years. This is the job description. Further we'll come to next position, जिसमें भी same qualification and experience required है. The job description is here. Next is assistant executive business development, maximum salary consolidated 62,000, age limit 35 years, 3 years of experience required, MBA marketing with 60% marks, first division. One post for general candidates. This is the job description. For more details, you can refer to this week employment news, or you can go to REC website. अब नेक्स्ट आते हैं MSME टेक्नोलॉजी सेंटर भोपाल की पोजीशंस पर, जो कि है फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर मार्केटिंग, पे लेवल 11, एज लिमिट 40 ईयर्स, पोस्ट UR अनरिजर्व्ड. दिस इज ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, पहले 5 साल के लिए, विच कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस टिल सुपर एनुएशन मीन्स रिटायरमेंट. Age is relaxable for 5 years for SC, ST and internal candidates and 3 years for OBC candidates. Qualification essential, degree in engineering, desirable PG diploma in tool design, marketing, management, postgraduate diploma in management, MBA, etc. For more details, experience is also required, 5 years experience. For more details, you can refer to MSME tcbhopal.org or you can refer to this week employment news. अब नेक्स्ट आते हैं, इट्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन फॉर इंजीनियर्स, बिकॉज ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पर पोजीशन निकली है फॉर द प्रेशर्स.
which is between 21 to 27 years. Degree required is civil engineering, pay level 7. असिस्टेंट इंजीनियर इज़ द नेम ऑफ द पोस्ट. 4 पोस्ट हैं यूआर के लिए, 1 है ओबीसी. टोटल पोस्ट हैं 5, बट पोस्ट कैन इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. और इसकी फर्दर डिटेल्स के लिए यू कैन गो टू www.nwda.gov.in, और इफ़ यू वांट वी कैन मेक अ डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिस्कशन फॉर दिस पोजीशन सून. नेक्स्ट है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया में निकली हैं जनरल मैनेजर फाइनेंस टेक्निकल, डिप्टी जनरल मैनेजर टेक्निकल, मैनेजर टेक्निकल. These are the number of the post and all the posts are on deputation basis. Next is the Goa Shipyard Limited, जिसमें जनरल मैनेजर कमर्शियल एक वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए. मैक्सिमम एज लिमिट इज़ 52, ग्रेड इज़ E7. ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पर है. फॉर मोर डिटेल्स यू कैन गो टू goashipyard.in, their website. Next is Inland Waterways Authority of India, जिसमें है 1 post of Chief Accounts Officer on deputation basis. And next is Ministry of Defence, जिसमें 3 पोस्ट हैं फॉर प्रिंसिपल सिविलियन स्टाफ ऑफिसर स्टोर्स एंड 6 पोस्ट ऑफ सीनियर सिविलियन स्टाफ ऑफिसर स्टोर्स. ये भी हैं डेपुटेशन बेसिस पर. नेक्स्ट एक एडमिशन अनाउंसमेंट है इन द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट मैनेज. इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट एग्री बिजनेस मैनेजमेंट फॉर द एकेडमिक ईयर 2021 to 23. इसमें जो एलिजिबिलिटी मांगी हुई है, मिनिमम क्वालिफिकेशन इज बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 45% फॉर SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंसेज या फिर और भी किसी भी डिसिप्लिन में. इसके लिए CAT 2020 का स्कोर चाहिए है आपको. एंड फॉर अदर डिटेल्स यू कैन रेफर टू द वेबसाइट. एंड द लास्ट डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज 31 December 2020. नेक्स्ट इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिसेबिलिटी नाइपेड. इसमें है अकाउंट्स ऑफिसर की ग्रुप A पोस्ट फॉर पे लेवल 10 ऑन डेपुटेशन बेसिस. Maximum age limit is 56 years. For more details, you can refer to this week employment news or its website. नेक्स्ट आते हैं अब हम डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में, जिसमें एक वैकेंसी निकली है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की ऑन डेपुटेशन प्लस प्रमोशन बेसिस कंपोजिट मेथड. नेक्स्ट है नॉर्थ रीजन फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट, जिसमें वैकेंसी सर्कुलर निकला है फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ टेक्निकल. इसमें एक पोस्ट है SC की, 2 पोस्ट हैं OBC, 2 अनरिजर्व्ड और 1 EWS. इट इज़ ग्रुप C नॉन गस्टेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट लेवल 1 एंड द मोड ऑफ रिक्रूटमेंट इज थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. फॉर मोर डिटेल्स यू कैन रेफर टू दीज वेबसाइट्स और यू कैन रेफर टू दिस वीक एम्प्लॉयमेंट पेपर. नेक्स्ट विल कम डायरेक्टली टू ESSO नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, जिसमें एक पोस्ट निकली है साइंटिस्ट D की एंड दूसरी है कोऑर्डिनेटर ग्रेड 4. साइंटिस्ट D लेवल 12 एंड कोऑर्डिनेटर लेवल 7. दोनों ही अनरिजर्व्ड है. मैक्सिमम एज फॉर साइंटिस्ट 50 ईयर्स एंड फॉर कोऑर्डिनेटर 35 ईयर्स. दीज आर द एसेंशियल क्वालिफिकेशंस. फॉर मोर डिटेल्स यू कैन रेफर टू इट्स वेबसाइट www.ncpor.res.in. इसकी लास्ट डेट है 4 January 2021 by 5 PM. नेक्स्ट है एडमिशन ओपनिंग इन सेंटर फॉर एक्सेलेंस इन बेसिक साइंसेज फॉर PhD प्रोग्राम. Academic year is 2020 to 21 in the School of Physical Sciences, Chemical Science, Mathematical Science and Biological Science, जिसमें मास्टर्स डिग्री चाहिए इन बायोलॉजी इन दीज फील्ड्स. एज लिमिट इज़ 30 years एज ऑन 31 December 2020. वैलिड CSIR UGC CSIR नेट का स्कोर कार्ड रिक्वायर्ड है. For more details, you can refer to www.cbs.ac.in/announcements/recruitment. Last date is 14 December 2020. Next is the job opening in Science and Technology field in CSIR Indian Institute of Petroleum, Dehradun, जिसमें 3 पोस्ट हैं फॉर प्रिंसिपल साइंटिस्ट, पे लेवल 13. मैक्सिमम इनवॉल्वमेंट इज़ 1,67,935. एज लिमिट इज़ 45 years. Next is the post of scientist. 9 posts हैं total, pay level 11. 94,253 is the gross emoluments and upper age limit is 32 years. For more details, you can refer to www.iip.res.in or you can refer to this week employment news.
नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, जिसमें एक पोस्ट निकली है असिस्टेंट कमिश्नर फिशिंग हार्बर की ऑन द पे लेवल 11, कंपोजिट मैथड डेपुटेशन. For more details, dof.gov.in is the website. Next is Tamil Nadu Board of Rural Development, जिसमें senior scientist and head, subject matter specialist, program assistant, SMS agrometeorology and agromet observer, ये सारी positions निकली हैं जिनके लिए different educational qualification है. For more details, you can refer to this website. Last date is 30 days from the date of publication. नेक्स्ट इज दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DDA में पोस्ट निकली है ऑन द डेपुटेशन बेसिस फॉर डायरेक्टर फाइनेंस, पे लेवल मैट्रिक्स 12. फॉर मोर डिटेल्स यू कैन लॉग इन टू www.dda.org.in. नेक्स्ट इज CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, जिसमें लास्ट डेट है 11 दिसंबर 2020 बाय 5 PM. पोस्ट है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर इन CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जम्मू में. एक पोस्ट है लेवल 6, एज लिमिट इज 30 years. मोर डिटेल्स www.im.res.in. अब नेक्स्ट आते हैं इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड पर, जिसमें एक पोस्ट है एग्जीक्यूटिव ग्रेड 1, डिसिप्लिन इज हाइड्रोजियोलॉजी, मैक्सिमम एज लिमिट इज 37 years एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड इज 7 years. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन अप्लाइड जियोलॉजी / इंजीनियरिंग जियोलॉजी और / जियोलॉजी विद एटलीस्ट 60% मार्क्स. इनवॉल्वमेंट 72 to 80,000. एक पोस्ट है EWS OBC एंड UR की. More details you can refer to engineersindia.com. Next, National Museum Janpat New Delhi में पोस्ट है Senior Technical Assistant Computerization Group B, which is on deputation basis. Next है NIT वारंगल, जिसमें बहुत सारी रिक्रूटमेंट निकली हैं फॉर द ऑफिसर्स, which is on direct recruitment basis. Mode of recruitment is direct. जिसमें 3 वैकेंसीज हैं प्रिंसिपल साइंटिफिक टेक्निकल ऑफिसर की, एक पोजीशन है स्टूडेंट एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर, एक है सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, 4 है डिप्टी रजिस्ट्रार, एक डिप्टी लाइब्रेरियन, एक है सीनियर मेडिकल ऑफिसर, एक SAS ऑफिसर. एंड नेक्स्ट इज साइंटिफिक टेक्निकल ऑफिसर, 5 वैकेंसीज. एंड नेक्स्ट इज अगेन SAS ऑफिसर, 1 वैकेंसी. दिस इज सीनियर SAS ऑफिसर एंड दिस इज प्रिंसिपल सीनियर ऑफिसर. लास्ट डेट है 1 दिसंबर 2020. फॉर मोर डिटेल्स NITW.ac.in. अगर आप चाहते हैं तो इसकी एक डिटेल नोटिफिकेशन भी हम आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं. फॉर दैट यू कैन पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज भुवनेश्वर, जिसमें एडवर्टीजमेंट है फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट C and that is reserved for OBC category. For more details you can log into www.dbtindia.com or ils.res.in. Last date is 15 days from this notification in the employment newspaper. Next आते हैं इग्नू में 2 वैकेंसीज हैं, 1 is for security officer and 1 is for a assistant registrar, जिसमें 42 years is the upper age limit for both vacancies. For more details you can refer to the website and the last date of submission of online application is 10 December 2020. नेक्स्ट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में बहुत सारी वैकेंसीज निकली हैं फॉर द मेडिकल प्रोफेशनल्स फॉर इट्स हॉस्पिटल एट रौड़ किला. 30 वैकेंसीज हैं डिफरेंट स्पेशलिटीज़ के लिए. इसकी डिटेल आप नोटिफिकेशन पूरी इस वीक के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में चेक कर सकते हैं. सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी में एक पोस्ट निकली है जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की ऑन डेपुटेशन बेसिस. एंड नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में 46 वैकेंसीज है लीगल कंसल्टेंट की एट वेरियस ऑफिसेज ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट. दिस इज द वेबसाइट dor.gov.in और http://enforcementdirectorate.gov.in. नेक्स्ट है टाटा मेमोरियल सेंटर, जिसमें एप्लीकेशंस हैं फॉर द पोस्ट ऑफ डिस्पेंसरी परचेज ऑफिसर, किचन सुपरवाइजर एंड फीमेल वार्डन. लास्ट डेट 20th November. tmc.gov.in is the official website. Next, MGIRI में डायरेक्टर की पोस्ट है. नेक्स्ट इज ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर में एम्प्लॉयमेंट नोटिस है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन लेवल 6. लास्ट डेट इज 25th November. फॉर मोर डिटेल्स दिस इज द वेबसाइट. आगे आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर में चीफ प्लानर की पोस्ट है डेपुटेशन पर. नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में काफ़ी सारी वैकेंसीज निकली हैं ऑन डेपुटेशन बेसिस. यू कैन चेक द डिटेल्स ऑन द वेबसाइट. नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल सेक्रेटेरिएट, इसमें भी डायरेक्टर की पोस्ट है ऑन डेपुटेशन. फर्दर आते हैं हम वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट
विच इज़ अंडर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ये है वेबसाइट www.vpci.org.in, जिसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज निकली हैं ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। फीस है 500 फॉर यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड नो फीस फॉर एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। एआर की 2 पोस्ट हैं, एक सेक्शन ऑफिसर की है, 6 सीनियर असिस्टेंट की हैं, एक फार्मासिस्ट, 6 असिस्टेंट, 10 स्टेनोग्राफर, 13 जूनियर असिस्टेंट, 2 ड्राइवर की पोस्ट हैं एंड एक जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, 4 senior technical assistant, 10 technical assistant, 1 laboratory assistant, 1 laboratory attendant, 5 nursing officer and 1 library attendant. These are the scale pay of respective post and this is the age limit. You can check the detail on the website or if you want हम इसकी एक detail official notification discussion भी आपके लिए बना सकते हैं. You can post that in the comment section. नेक्स्ट आते हैं अब हम दौलत राम कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन परमानेंट बेसिस की वैकेंसीज़ पर, जिसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज निकली हैं फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, म्यूज़िक, एनएचई, फिलोसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी एंड संस्कृत. इफ़ यू वांट वी कैन मेक अ डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिस्कशन फॉर दिस पोस्ट. नेक्स्ट सेक्रेटेरिएट बोर्ड ऑफ कंट्रोल कैंटीन सर्विसेज में भी डेपुटेशन पर कुछ पोस्ट निकली हैं, डिप्टी जनरल मैनेजर. नेक्स्ट है साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता, जिसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पर पोस्ट निकली है फॉर डेप्टी कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स डीसीए, अनरिजर्व्ड है, पे लेवल 11. saha.ac.in वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं. 7 दिसंबर 2020 है इसकी लास्ट डेट. नेक्स्ट ICAR में जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर की पे लेवल 6 की पोस्ट है ऑन परमानेंट एब्जॉर्प्शन बेसिस, डेपुटेशन. नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड में सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की डेपुटेशन बेसिस पे वैकेंसी निकली है. सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड न्यू दिल्ली में रिक्रूटमेंट है फॉर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स. पोस्ट है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जनरल मैनेजर. फॉर डिटेल यू कैन चेक दिस वीक एम्प्लॉयमेंट पेपर. नेक्स्ट आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, जिसमें जॉइंट डायरेक्टर की पोस्ट है ऑन डेपुटेशन बेसिस. नेक्स्ट आते हैं इंडियन ऑयल, जिसमें अप्रेंटिस की काफ़ी सारी वैकेंसीज निकली हैं. यू कैन चेक द डिटेल ऑन द वेबसाइट और दिस वीक एम्प्लॉयमेंट पेपर. रिजर्वेशन इज एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड द डिटेल is available on the website https://plis.indianoilpipelines.in. नेक्स्ट आते हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन में, जिसमें रिक्रूटमेंट नोटिस है फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप ए कैटेगरीज. जो इसकी डिटेल है वो आपको मिलेगी kvic.org.in. लास्ट डेट इज़ 15 दिसंबर. नेक्स्ट DRDO में काफ़ी सारी जूनियर रिसर्च फेलो की पोजीशंस निकली हैं बहुत सारे डिसिप्लिन्स में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, केमिकल इंजीनियरिंग, ओशनोग्राफी एंड सो ऑन. इसकी डिटेल नोटिफिकेशन आप चेक कर सकते हो इसकी वेबसाइट www.drdo.gov.in. नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट में 5 पोजीशंस निकली हैं पर्सनल असिस्टेंट रीजनल लैंग्वेज के लिए. पे लेवल 7 है. डिटेल्स आपको यहाँ मिलेंगी http://legislative.gov.in/document/recruitment पर. 30 days फ्रॉम द पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट लास्ट डेट है, तो आप चेक कर सकते हैं इसकी डिटेल. आई थिंक इट इज़ ऑन डेपुटेशन बेसिस बट स्टिल यू कैन चेक ऑन द वेबसाइट. नेक्स्ट इज महर्षि संदापनी राष्ट्रीय वेदावी प्रतिष्ठा उज्जैन इज़ एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. यहाँ पे रिक्रूटमेंट है फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट, जो कि है ऑन डेपुटेशन बेसिस, फेलिंग विच बाय द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. पे लेवल 6 है. डिटेल आपको मिलेंगी वेबसाइट msrvvp.ac.in पर. नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, जिसमें ऑनलाइन इंटरव्यू होगा 23 नवंबर 2020 को 10 बजे से फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट असिस्टेंट अंडर दिस प्रोजेक्ट विच इज़ फंडेड बाय DST. इसकी डिटेल्स आपको मिलेंगी www.iari.res. इन पे इसकी इमॉलमेंट्स हैं कंसोलिडेटेड 22,000 रुपये पर मंथ. एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज़ BTech, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स/इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग. डिज़ायरेबल इज़ MTech. डेट एंड टाइम ऑफ इंटरव्यू 23 नवंबर 10 बजे. डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं वेबसाइट पर.
नेक्स्ट फ्रेंड, ये है सब्सक्रिप्शन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का। मैंने एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ को सब्सक्राइब किया हुआ है। इफ़ यू ऑल्सो वांट टू सब्सक्राइब तो ये है इसका पेमेंट प्लान। एंड नेक्स्ट, कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन CDS 2019 का क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है। इफ़ यू वांट टू गो थ्रू दिस यू कैन रेफर टू दिस वीक एम्प्लॉयमेंट पेपर। सो फ्रेंड्स, लास्ट में है न्यूज़ डाइजेस्ट। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू।